Praise the Lord, church. Praise God. I am here to testify The what mic- God has done in my life within past 1 week. Yes, God has blessed me with a new life. And the 10th of February, I was not able to sleep because I was not, when I went to bed, मैं जब भी बिस्तर में जाता था सांस लेने में तकलीफ होती थी. उससे पहले ये मुझे चलने में भी होती थी, लेकिन मैं बिस्तर में उस दिन सो नहीं पाया. मैं सारी रात सोफा में बैठे रहा और वहीं पर सोया. 11th को मैं डॉक्टर के पास में गया, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ है बोल के. मुझे फिर डॉक्टर ने बोला एक्सरे कीजिए, चेस्ट एक्सरे. तो द रिपोर्ट केम एंड माय राइट लंग्स was filled with fluid. The whole right lungs was filled with fluid. So doctor told, no, this can be the possible sign of tuberculosis. First thing he said. So what he told, yeah, we have to do first we have to take out the fluid. So by injecting syringe in the back or my shoulder and back area, so they took out only 250 ml and blood was coming out. So they stopped the process and told, no, blood is coming out, so we cannot continue with this. So they sent the report to the lab, and before that all the reports were normal. USG was normal, and all the blood report was normal. Even I was not having with BP, sugar, cholesterol also. Everything was under control. So, on the next day, I got admitted in the hospital. On the same day, the 11th, I got admitted in the hospital. The process started from at night, 9 o'clock. So I was there, and the doctor stopped in between no, we have to send this to the lab. This report will come after 2 days or 3 days. You have to be staying over here only. So मैं वहाँ पर रुका रहा without any medication because doctor did not find anything. उन्होंने मुझे बस सलाइन चढ़ाया, NS की बोतल चढ़ाई, B12, B6, गैस, इन सब की दवाइयाँ चढ़ाई और मुझे 3 दिन तक रखा. चौथे दिन में 2 डॉक्टर्स मुझे देख रहे थे. One was physician and other one was pulmonologist. So pulmonologist was there to do the operation. Okay, now we have to take out the fluid. Anyhow, I also wanted to take out the fluid. It is an unwanted material in my body, and God does not allow any unwanted material to be in our body. So I also wanted to take it out. So I agreed, and during the operation, he took the biopsy also. He did the biopsy also, and during there was 2 reports. In one report, in which the doctor gave, another report is the biopsy report. Biopsy report came after 2 days. The biopsy report came after 4 days, actually. The doctor report, in the doctor report, it was mentioned the name of a disease which is incurable. So I don't know what the name of the disease. Also, it was in some technical terms. They have searched in the Google and all. My office staff was there. My boss was there. They have discussed 3 to 4 doctors in Ahmedabad. And my bhaiya bhabhi was there in the Ranchi. They saw the report. They immediately started praying first, and then they consulted a doctor. All the doctors said only one thing, that I have not much life to live. मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है. But they never told me ये क्या हो रहा है मेरे साथ में. Ultimately, I was there in the hospital, and the doctor discharged me after the second day. No, you can go, but after the biopsy report will come, the doctor was sure that what I have written will come in the biopsy report. That was coming to be after 4th or 5th days. So this happened, and I was back home.
After 5 days, in between, my family members requested pastor and his family to do the prayers. There was one day fasting prayer for me. I saw this on the Monday. On the Sunday, on the Saturday, I got discharged. In the Monday, I heard about the fasting prayers, and Monday there was fasting prayer for me. Everybody prayed. Many of them fasted and prayed, and I've seen the power of prayers actually in my life. The whole negative report turned to be positive after 4 days. The biopsy report turned the doctor's report upside down. Yes, and I was not knowing what is actually happening. They were discussing in themselves. Pastor told it's a big testimony, but I was not knowing what is actually there. They have not shown me the doctor's report. I have seen all the good reports. What was the negative report? I have not seen. Yes, this was the power of prayers which I have seen in my life. And I'm thankful for everybody who has prayed for me. Thanks for the pastor and family who has continuously prayed. Thanks for the office members who has prayed for me in different ways. Thank you. Amen. सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद कि कल मेरे गले से आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बट मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आपने हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है, मुझे इसकी गवाही देनी है, आप मुझे बोलने की शक्ति देंगे। कल ऐसी हालत थी कि मेरे गले से आवाज़ भी नहीं आ रही थी, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस हवा निकल रही थी, फुसफुसाहट हो रही थी, लेकिन मेरे मन में था आज मुझे गवाही देने हैं आपके सामर्थी नाम की। जो महान कार्य आपने हमारे जीवन में किया है उसके लिए मुझे धन्यवाद देना है। धन्यवाद, सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थी कार्य करने वाला परमेश्वर है। सचमुच वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। चाहे डॉक्टर्स कुछ भी बोले, उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन कर दिया था और वो श्योर थे कि इनको वो बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। कुछ दिन पहले तक इस बीमारी का नाम लेते हुए भी मैं कांपती थी, उसको मैं सोच भी नहीं सकती थी। हर वक्त जब वो नाम मेरे दिमाग में आता था तो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मैं उसे कैंसिल तो करती थी, लेकिन उस वक्त ज़रूर घबरा जाते थे। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य। उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी, हम जानते हैं कि कैंसर क्योरेबल नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म है अभी तक जो क्योर हो सकता है, बट परमेश्वर ने उस बीमारी को भी इनके जीवन से हटाया, जो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स ने मेंशन कर दिया था नाम के साथ दैट इन्हें रेयर टाइप ऑफ लंग कैंसर है, लेकिन परमेश्वर ने उस रिपोर्ट को भी पलटा है। और जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो जो सैंपल लिया गया था, दोज वेर काउंटेड एज डेड सेल। अगर कुछ था भी तो परमेश्वर ने उसे मारा है, उसे ठीक किया है। परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य के लिए हमारे जीवन में धन्यवाद देती हूँ मैं आप हर एक को जिन्होंने इनके लिए फास्टिंग प्रेयर किया। हर एक हाथ, हर एक जुबान, हर एक घुटना जो इनके लिए टिका, धन्यवाद। पास्टर्स फैमिली, हमारे हर एक पड़ोस, चर्च के हर एक मेंबर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर पिता को सबसे बड़ा धन्यवाद कि हमारे
हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी गवाही को हमारे जीवन में दिया, इतने सुंदर कार्य को, इतने अद्भुत गवाही को हमारे जीवन में दिया। सचमुच मैं इस गवाही ने हमारे जीवन में परमेश्वर के विश्वास को तो बढ़ाया। मैं आप सबको भी प्रोत्साहित करती हूँ कि चाहे डॉक्टर्स या संसार के कोई भी लोग कुछ भी बोले, हमारा परमेश्वर हर एक कार्य करने में सामर्थ्य है, वो हर कुछ कर सकता है परमेश्वर को। और आप हर एक जन को जिन्होंने हमारे इस घड़ी में हम आए, हमसे मिले, हमारे लिए प्रार्थना किया, हर एक को पुनः धन्यवाद देती हूँ। हमारे परिवार के सदस्य जिन्होंने अपने अपने हर एक कार्य को छोड़कर वो आए, अपना सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आए, परमेश्वर को धन्यवाद। इतने सुंदर प्रीति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, बड़ी सिस्टर इन लॉ। शी इज़ अ मेडिकल पर्सन, शी इज़ अ स्टाफ। उन्होंने जैसे मैंने इनको रिपोर्ट भेजा, ये और बड़े भैया सीधे रांची में जो पल्मोलॉजिस्ट है उनके पास वो लेकर गए। उन्होंने वो रिपोर्ट देखी और कहा कि अब तुम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ये पूरा साफ दिख रहा है, इनके पास समय नहीं है, सिर्फ 4 से 6 महीना, दिस इज ऑन द लास्ट स्टेज। इसके बाद आप क्या वेट कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? इसकी और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप उनको यहाँ लाते भी हो ट्रीटमेंट के लिए तो उनको मेंटली प्रिपेयर करके लाना कि कुछ नहीं हो सकता है, बस थोड़े दिन के लिए आपकी मेडिकेशन कुछ एक्सटेंड हो सकती है लाइफ, बट फाइनली इसका कुछ नहीं हो सकता। बट फिर भी ये वो रिपोर्ट लेकर पल्मोलॉजिस्ट से लेकर उसके बाद ये सीए स्पेशलिस्ट के पास भी गए। मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ सीए सेंटर में भी उन्होंने किया है, वहाँ के डॉक्टर से भी इन्होंने कंसल्ट की। उन्होंने भी यही बात कहा कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, ये लास्ट स्टेज पे है, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने ही हो सकते, उससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट भी मत करना। एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम मेंटली कि अब कुछ नहीं हो सकता। बट हमारे सामर्थ्य प्रभु को धन्यवाद कि डॉक्टर्स की हर एक बात उन्होंने पलटी और इतनी सुंदर गवाही को हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा मौका दिया, इस गवाही के लिए खड़ा किया है मुझे। मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी गवाही है। मैं परमेश्वर पिता में तो बनी थी बट इतना आगे नहीं बढ़ पाई थी। जैसे स्वाति ने मुझे खबर किया कि नमन को थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि चेस्ट एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे करने के बाद में थोड़ा फ्लूइड है वो निकालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है एक्सरे दिखला देना। तो बोली ठीक है दीदी भेज देती हूँ, सारा रिपोर्ट्स भी भेजा, एक्सरे भी भेजा। तो एक्सरे में फ्लूइड्स था वो मैं देख ली। फिर मैं पूछी भी कि वो फ्लूइड कितना आया, तो 250 ml आया। कलर क्या है, सबसे पहला सवाल था मेरा उसका कलर क्या है। तो इसने कहा कि दीदी रेडिश कलर है। मेरा डाउट सीधे गया, सीधे उसी डायग्नोसिस पे किया। लेकिन मैंने उस जस्ट घुटने पे आकर कहा कि प्रभु मेरे जो थॉट्स में आया उसको आप यीशु नाम से मैं कैंसिल करती हूँ, क्योंकि मेडिकल में होने पे मुझे एकदम कंफर्म था कि ये हो सकता है। बट मैंने सिर्फ सोचा, लेकिन यीशु नाम से मैंने कैंसिल किया उसको। फिर इसने कहा कि वो दूसरे हॉस्पिटल पर ले जाएंगे जिस पे मैं दिखाई, वहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स नहीं हो सकते हैं। ये वहाँ गए, एडमिट हुए। मैंने पूछा भी कि क्या क्या मेडिसिन चल रहे हैं। तो सिंपल मेडिसिन है दीदी, कुछ ऐसा नहीं है। बोले ठीक है अभी तक एंटीबायोटिक क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, तुम एक बार पूछ के देखना। तो उन्होंने वो पूछी भी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये
जब तक हम लोग कंफर्म कोई डायग्नोसिस नहीं करते हैं तब तक कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जब ये बोली कि दीदी बायोप्सी होगा, प्लूरल इफ्यूजन के लिए बायोप्सी होगा, तो ठीक है वो हुआ। हम लोग भी, मैं और हस्बैंड्स उन दिनों में काफ़ी बिजी थे, दूसरे घरों पे हम लोग प्रेयर के लिए जा रहे थे जिनकी बहुत ज़रूरत थी। दिमाग में फिर भी यही था कि ब्रदर नमन को ऐसा कुछ भी ना हो प्रभु, क्योंकि हम जब दूसरे के घरों पे लड़ने के लिए शैतान से जाते हैं, शैतान उस प्रेयर को रिसीव तो करता है, शैतान रिसीव करने नहीं देता है। यीशु मसीह के नाम से जब हम मांगते हैं प्रेयर को, तो वो शैतान लड़ता है। ठीक है, तुम उसके लिए प्रेयर मांग रहे हो, मैं वो जो मांग रहे हो उस हानि को उठाकर मैं तुम्हारे घर पे जरूर दूंगा, तब तुम्हारा विश्वास टूटेगा। लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। मैं और हस्बैंड एकदम रेगुलर प्रेयर पे थे ही। वहाँ से जब दूसरे के घर से लौटते थे तब भी प्रेयर पे बैठते थे, और मैं और हस्बैंड दोनों कभी साथ में नहीं बैठते थे। वो अपना बैठते थे, मैं अपना बैठती थी, और यही डेली प्रेयर करती थी कि नमन ब्रदर को कुछ ऐसा ना हो। फिर जब स्वाति को मैं बोली कि बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया होगा तो भेज देना, जब ये लास्ट रिपोर्ट आया भेजी, मैं प्रेयर से हम लोग जस्ट हटे ही थे पूरी फैमिली। मैं रूम में जाके देखी, मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मतलब मैं मानने को ही तैयार नहीं थी कि वो डायग्नोसिस हो सकता है। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया कि आप ये देख लो, मुझे तो मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। फिर हस्बैंड को दिखलाई, वो देखे, और वो भी देख के दूसरे रूम पे चले गए, वहाँ कंटिन्यूस प्रेयर किए, और फिर आए और बोले कि ये तो प्रेयर में भी दिख रहा है कि शैतान किस तरह का बड़ा अटैक किया है कि आज हमारे परिवार से एक इंसान को ले जाने को खड़ा है। मैं सिर्फ यही बोली हस्बैंड को कि आप परमेश्वर से यही दुआ करो कि हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी अनहोनी घटना ना हो। उसके नाम के प्रार्थना को चढ़ाओ कि प्रभु अपने लिए हमको इस्तेमाल जब कर रहा है तो एक बड़ी गवाही को खड़ा करेगा। और जब मैंने रात के 12:30 बजे पल्मोनोलॉजिस्ट को ही मैसेज किया कि मैम मुझे एक रिपोर्ट के थ्रू में जो भी कंफर्मेशन नहीं है फिर भी मैं दिखलाना चाहती हूँ। उन्होंने रात के 2 बजे मुझसे मैसेज किया कि ठीक है, आप कल रात नेक्स्ट डे आप 10 o'clock में आ जाइएगा। नेक्स्ट डे मेरे बेटे का PTM था, हम लोग वहाँ से होते हुए 11 बजे मैम के पास गए। लेकिन उस दिन भी ना इतनी सारी रुकावटें थी कि मैम जो उसको 10 बजे आने थे वो 12 बजे आई। फिर मैम को दिखाते साथ जैसे स्वाति ने बताया कि मैम ने एकदम कंफर्म कर दिया कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, डायग्नोसिस है। तो मैडम यहाँ तो लाइक लिखा हुआ है कि जस्ट लाइक हो सकता है। नहीं, यहाँ लिखा हुआ क्या दिख रहा है कि इतने सारे नूडल्स, मल्टीपल नूडल्स है, और उसमें है कि वो ट्रकिया एक होता है, और ट्रकिया बीचों बीच है। कैंसर का वो निशानी है कि ट्रकिया में जब बीचों बीच रहेगा और नूडल्स मल्टीपल दिख रहे तो ये कैंसर ही है। और लंग्स कैंसर एक रेयर बीमारी है जिसमें पेशेंट बचता ही नहीं है। उसके पास लाइफ 1 साल मुश्किल से 4 से 6 महीने हार्डली मेडिसिन जाएगा तो 10 months। स्वाति बोली कि डिस्चार्ज कराएंगे दीदी, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज कराएंगे। और मैंने ये भी पूछा कि चेस्ट ड्रेनेज कुछ लगा है क्या, तो बोली हाँ ICD बैग लगा है। मतलब ठीक है, वो निकलवा देते हैं और रिलीफ होगा। तो मतलब मत निकलवाना और डिस्चार्ज भी मत कराना, क्योंकि परमेश्वर इसी में बड़ा काम करेगा। और जब डॉक्टर बोल दिया है लेकिन हम लोग उस बात को काटते हैं। यीशु नाम से मैंने और हस्बैंड ने उस बात को, मैडम के कही हुई बातों को काटा, क्योंकि हम सारे इंसान हैं। इंसान सिर्फ बोल सकते हैं कि वो हो सकता है, वो होगा, लेकिन परमेश्वर हर रिपोर्ट को बदलने की सामर्थ्य रखता है, और उसने ऐसा किया। हम जब फिर दूसरे जगह पे गए, मैम ने सजेशन किया कि कैंसर हॉस्पिटल में जाके दिखलाओ। डॉक्टर सौरभ कुमार जो कि झारखंड के बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं, मैंने उनसे पूछा कि मैं सिस्टर अजीता बोल रही हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। और श्योर आ जाओ। जब हम दोनों हस्बैंड निकले, उस दिन ट्रैफिक इतनी थी कि हम लोग को पहुँचने में 3 घंटे लग गए, जबकि हार्डली वहाँ से 45 मिनट लगता है हमारे घर से। उस दिन 3 घंटे हम लोग को लग गए डॉक्टर के पास में। फिर वहाँ ½ an hour वेट करने के बाद जब रिपोर्ट शो की तो वो एकदम सिर पकड़ के ऐसे ही बोलने लगे कि अजीता, तुम एकदम अपने परिवार के एक मेंबर को खो जाओगी। मैंने बोला सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो नहीं, इस रिपोर्ट में है बेटा और कुछ नहीं हो सकता है। बोला सर कुछ मेडिसिन्स या केमो? तो केमो इसमें लगता ही नहीं है, केमो है ही नहीं। ये मेडिसिन्स है जो कि बहुत सस्ती मेडिसिन आती है,
आप उसको दोगे तो भी हार्डली वो 1 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं है उसके पास। लेकिन जब मैंने कहा कि सर वहाँ तो कोई है नहीं, जो है हमारे चर्च के मेंबर ही है जो सपोर्टिव हैं, बट कैसे हम लोग रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ रह के कुछ ज़रूरत होगा, कैसे मैं मैनेज करूँगी, मैं मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। तो उसने कहा ठीक है कहाँ है, तो मैंने कहा कि गांधीनगर गुजरात में। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है कि अहमदाबाद में बहुत अच्छे अच्छे कैंसर के डॉक्टर हैं जिनके साथ मैं काम किया और मैं खुद भी यहीं से अपना डॉक्टरेट किया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ एड्रेस दूंगा, आप वहाँ कराओ या यहाँ कराओ। तो मैं बोली मैं यहीं लाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप लाओगे तो मेंटली प्रिपेयर करा के लाना कि उनके पास लाइफ और है नहीं, जो है मेडिसिन से जितने दिन वो चलेंगे चलेंगे। मैंने उसी वक्त उनकी बातों को परमेश्वर के नाम से काटा और कहा प्रभु डॉक्टर्स बोल रहे हैं पर आप उस बात को असंभव करेंगे, आप नमन ब्रदर के जीवन में एक नया लंग्स देंगे और उसे नया जीवन देंगे और हमारे पूरे परिवार को गवाही के लिए खड़े करेंगे। आज प्रभु ने वो दिन दिया और हमें खड़ा किया। सबसे बड़ी बात, हमने अपनी माँ को नहीं बतलाया है कि ब्रदर नमन को ऐसा ऐसा डायग्नोसिस किया है। हमारी माँ हम मेरे और मेरे हस्बैंड की एक्टिविटी को देख के डाउट्स करती थी कि क्या ये मैं और हस्बैंड घर से बाहर जा के निकल के प्रेयर कर रहे, घर में प्रेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे प्रभु इतनी विकट स्थिति में शैतान हमें ले आया है। पर प्रभु आप सामर्थ्यवान प्रभु है, आप हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमने महारांची में किसी को भी नहीं, इवन ना ही स्वाति के फैमिली में, ना ही मेरी फैमिली में, किसी की फैमिली में हम लोगों ने कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना है कि हमें गुजरात जाना है। एक मन में उथल पुथल हो रही थी कि कैसे मैं स्वाति के पास पहुंचूं, कैसे, जब वो इतनी बड़ी परिस्थिति से अकेले कैसे जूझ रही है, कैसे उस चीज को संभाल रही है। परंतु परमेश्वर ने इसे उस बड़ी परिस्थिति में भी संभाला। अकेले इतनी बड़ी डायग्नोसिस को सुन के वो ना ही नमन के पास रो पाई, ना ही बच्चों के पास। जब घर में आंसू भी बहाई ना, हमारी बेटी पूछती मम्मा आप क्यों रो रहे हो। स्वाति का यही वर्ड्स था कि परमेश्वर पिता पापा को ठीक कर रहे हैं। हमारी बेटी भी इस बात को बोली कि हाँ पापा ठीक हो गए। जब हम रांची से जब अहमदाबाद और अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंचे, बाहर नमन ब्रदर, एलिशा माँ और एलिशा खड़े थे। वो आके गले लगाई और बोली बड़ी मम्मा पापा ठीक हो गए। मैं बोले हाँ बेटा, यीशु नाम से पापा ठीक हो गए। परमेश्वर ने इस बात को कि कहा है कि बच्चे मन के बहुत साफ होते हैं, उनका प्रार्थना वो जल्दी सुनते हैं। मेरा बेटा भी, बेटी सिमोना से कुछ ही छोटा है, कुछ ही महीनों का, वो भी हमेशा घर पे प्रेयर करता है कि मम्मा चाचा पापा ठीक हो गए हैं ना, यीशु बाबा चाचा पापा को ठीक कर दे। हम बोले यस बेटा, यीशु पापा चाचा पापा को बिल्कुल ठीक कर दे। और आज का वो दिन है जिसमें परमेश्वर पिता ने हमारे हर एक प्रार्थनाओं को, आपके द्वारा किए गए प्रार्थनाओं को, पास्टर साहब और उनकी फैमिली को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सबों ने मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना और हर एक जो भी नेगेटिव रिपोर्ट्स थे उसको आज पिता परमेश्वर ने एक अच्छे रिपोर्ट्स में बदल दिया है। आज हम पूरे परिवार यहाँ पे खड़े होते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते कि इस अद्भुत चमत्कार के लिए हमें वो पिता परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस परिस्थिति में भी हमारे छोटे परिवार जो यहाँ रहते हैं उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर पिता को विशेष कर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस समय हमें गवाही के लिए हमें इस्तेमाल किया है। धन्यवाद। आमीन। Hallelujah. No. We will never give up. Amen. We'll never give up. That's one this month. On Friday, it was on February 14, the world celebrating love, 8 p.m. It's a sister's message, okay? It was 7:56. Please pray for Alicia Ma's Papa. We were about to start the Friday prayer. Charles किधर है? चार्ल्स कल पूछ रहा था, पास्टर टियाना का बर्थडे में आप खुश नहीं था, आप मेरे साथ गुस्सा है। Okay, then sister's message. I was there here stage. Sister's message. We were just starting the meeting. Says biopsy was not good. Sample sent to lab for further test. ये सुनने के बाद I could feel a shivering in my heart. इधर खड़ा है, मीटिंग चालू करना,
I think I spoke to immediately after the service, cake cutting, dinner all are going on. लेकिन मेरा मन ठीक नहीं था. I called Chong, which was here. I said, Chong, we have to pray. The report is not good. करके sister ने message पड़ा. Immediately after the service, we'll leave. Then Rosie Raskin बाहर था. उनको बोला हम निकलेंगे. निशांत भी था. निशांत was with his to घर. He was leaving to hometown जा रहा था. हमने बोला हम जाकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे. उस दिन सोच हमने समझा है दिस इज अ फैमिली. एक को होगा तो सबको क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है. Saturday was a big battle. Sunday standing here was not possible at all. Let me tell you, because they are just एक छत का ऊपर है. That's one slab above us. Lot of things are questioning. The family stood thick and thin for the sanctuary. Okay, Lord, you have to change this report. We don't want to hear that name also, Lord, And get other pastors. So I shared only with few people because I don't want to put many into panic. Pastor Robert knows. So they were here praying. Pastor David and Azadi Church was praying. I shared with Pastor Nilesh because he knows brother Dekana Bhai. We want to say change. We can't accept the word itself. The report to dur ka baat hai. Okay, but thank be to God. This God has done the miracle. When Monday went for the second scan, X-ray, it was clear. That itself we said, wow, it has done. See, the liquid is accumulating almost 3, 4, 5 months. That itself a miracle. ज़्यादा डैमेज होने नहीं दिया परमेश्वर ने. That itself is a big miracle. We have already tasted the goodness of God in many ways. आप लोग, so every testimony is going to be it's going to go in the archive in the testimony list. We are going to see. Next कोई भी बोलेगा ना, हम आपका नाम लेके बोलेंगे. We have seen God doing for Naman brother. Hallelujah. We have multiple testimony. Thank the Lord. Come on. धन्यवाद हो तेरा. धन्यवाद. Shall we stand in the presence of God, church? धन्यवाद हो तेरा यीशु. धन्यवाद हो तेरा. सांसें जो लेता हूँ जो देखो नया तेरी दया. सांसें जो लेता हूँ तूने दिया. धन्यवाद हो तेरा. धन्यवाद हो तेरा. धन्यवाद हो तेरा. असंभव कुछ भी नहीं. असंभव कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं. असंभव कुछ भी नहीं. असंभव कुछ भी नहीं. यीशु नाम में असंभव कुछ भी
साथ है तू मेरी ढाल यीशु तू ही मेरी चट्टान आंधी हो या हो तूफान यीशु मेरा सर्वशक्तिमान तू मेरा बल तू मेरी ढाल यीशु तू ही मेरी चट्टान आंधी हो या हो तूफान यीशु मेरा सर्वशक्तिमान See, church, our sister said, she's a staff nurse. उस बीमारी, पर्टिकुलर बीमारी में कोई बचता नहीं है. But we are going to pray, God, the name of Jesus, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, चंगा कीजिए परमेश्वर. डॉक्टर्स रिपोर्ट को क्या करना? बदल पलटना है. I want to tell you also, church, यदि कोई भी ऐसा कुछ ऐसा आता है ना, तुरंत प्रार्थना करना. परमेश्वर जी, वो बोला 8 महीना 10 महीना बोल रहा है, हम बोलेंगे 7 साल तक जिएगा, 70 साल 80 साल तक जिएगा करके आप क्या करना? When you profess, they will be healed. See, coming days, I was sharing yesterday evening with our team, coming days is going to be a different. It's going to be a different. You speak, God will heal. Report will be there. You speak, God will heal. Come on, हाथ उठा के Lord, हमारे देश से ऐसा बीमारी से छुटकारा दे परमेश्वर. Come on, in the name of Jesus. The name of Jesus. Heal our land, O Lord. Heal our land, O Lord. Heal our nation, O God. Heal Gujarat. Hallelujah. Churches के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर. ऐसा बहुत सारे बीमार से पीड़ित है परमेश्वर. यीशु मसीह का चंगाई का वरदा. चंगाई. By your stripes we are healed, O Lord. यीशु मसीह चंगा कीजिए परमेश्वर. You visit every hospital, O Lord. जो given up situation में आप वो रूम में जाइए, आप प्रकट कीजिए, आप चंगा कीजिए, सारे रिपोर्ट को बदले परमेश्वर. Thank you, Lord. We want to thank you, Lord, for the added testimony, O Lord. Thank you for Naman brother, Swati sister. They are planted in the house of God. They are member in the body of Christ, O Lord. Just listen. You are a member in the body of Christ. Turn to your neighbor and say, you are a member in the यीशु मसीह का शरीर का अंग है. यीशु मसीह का शरीर का अंग है. जब उसके अंग है, उसका खून बहता है, साफ करता है. I want to tell you, every day he is healing you. हर दिन चंगा करता है. You will live in his body. You are living cell. उसका शरीर का सारे भलाई हमारे शरीर में भी बहता है. That's why we need to be a member in the body of Christ. बहुत सारे आप सोचते हैं ना, टाइट देगा तो क्या है, ऑफरिंग देगा तो क्या है. टाइट देने का मतलब क्या मालूम है? यू आर मेंबर इन द फैमिली, द मेंबर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. यू आर इन हिज बॉडी, इन हिज बॉडी. बहुत सारे समय लाइटली ले लेते हैं. चर्च आना क्या है? यू आर मेंबर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. इसलिए जब हम आराधना में आते हैं ना, प्रार्थना करते हैं ना, ऑटोमेटिकली चंगाई होता है, क्योंकि हिज ब्लड फ्लोस, हिज ब्लड flows. He heals us. We want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for everyone fasted, prayed, visited. Blessed, oh Father God. Love you, Jesus. We are going to carry your healing for the nations, oh God. We are going to carry your healing to the hospitals, oh Father God. Bless. Even we declare now, oh Lord. Lord, we pray in the name of Jesus for, Lord, hallelujah, Raksha sister. Healing touch, oh Father God. We'll be here next Sunday testifying your glory. There's going to be many healing miracles, oh Lord. Miracles. Now we pray healing miracle out of the church, oh Lord. Come on. From outside also, Father God. Unknown people are going to say, I'm healed because of this brother, that brother visited. Come on. We are going to bring many testimony from outside, inside, oh God. Now we are experiencing healing inside. Now from inside we are going to take the healing outside, oh Father God. Have your way, oh Father God. Bless. This kind of testimony is going to be in the streets, oh Father God. Lord, in the corners, oh Father God. It's going to happen outside, oh Lord.
Thank you. Love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's give a big hand to the Lord. All the glory to Jesus. Glory to Jesus. Amen. Aman brother, we love you. Brother sister, we love you. You know, see, last Sunday was इतना difficult था. किसी का पता भी नहीं चलेगा. Yes, mummy. You know, Simona Elisama इधर ही था. We thank God for the children also. Amen. ना जैसे last Sunday में बोला था, हम लोग 8 बजे आसपास निकल जाता. मैं एलन वो नीचे बैग के साथ पैराशूट जैसे बैग पहन के नीचे आ गया था. वो भी Elisama, you also want to come. Then after some time, 8:30, 8:45, you know, Fancy Chong are coming. Simona भी उनके साथ था. आते. Children also planted in the body of Christ.